Vice Chancellor, Kashmiri University, Professor Nilofer Khan, Professor Ashok Kumar, eminent scientist from IIT Kanpur, Professor Praveen Vermala from Bangalore, Specialty Nanoscience University of Kashmir colleagues from Jammu Kashmir Administration, scientists and researchers from across the globe, Dean, HODs, students, ladies and gentlemen. I am pleased to be here with all of you at this International Conference of Nanotechnology for Better Living. My hearty greetings to all the participants. A warm welcome to all our esteemed friends from abroad. Like many of you, I often wonder what is the scale and speed of change in science and technology today, and how can advancements and breakthroughs will prepare the industries for an uncertain future and help the society to live a healthy, stress-free and prosperous life. I think part of the answer lies in the happenings around us. On 2nd September, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji inaugurated Semiconductor Conference in New Delhi, and he promised that India's smallest chip will drive the world's biggest change very soon. The world has seen how key nanotechnology applications have powered the semiconductor technology and smaller, faster, and more energy-efficient devices have transformed the electronics communication system and artificial intelligence. I can say these advancements have reshaped our lives, our work environment, and most importantly, our connection to the world. It was mentioned in a science journal that a single smartphone today has far more computing power than the computers used for the Apollo 11 moon mission in 1969. Behind the computing power of the smartphone is the power of nanotechnology, which has helped with creating processors containing billions of transistors, giving it immense processing power and memory capacity. And this is only one of the numerous achievements made possible by our nanoscientists and technologists. Today, there is not a single area of global socio-economic development that does not bear the signature of nanotechnology in some form or the other. In the years to come, this will become more prominent as we script the new advancements in technology. मित्रों, बहुत पहले एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। IBM कंपनी के एक ऑफिसर थे, जॉन कैरी। उन्होंने कहा था कि इंसान एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां डिस्टेंस और टाइम दोनों एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की जब बात हम करते हैं तो इसका जो एडवांसमेंट है वो एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह है। 2007 में ये बात अनेक लोगों के ध्यान में होगी, सच भी साबित हुई। इसके पीछे एक कहानी है जिसका जिक्र मैं करूंगा। एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स अपने एक दोस्त जॉन डोव के साथ अपने बच्चे के स्कूल में फुटबॉल मैच देखने गए थे। मैच के बाद स्टीव जॉब्स ने अपने पैंट से की जेब से एक मोबाइल फोन निकाला और जॉन को दिखाते हुए कहा कि इस फोन ने लगभग मेरी कंपनी को दिवालिया कर दिया था, क्योंकि तकनीक की दुनिया में हम इस फोन के जरिए जो करना चाहते हैं वो आज तक हो नहीं सकता। जॉन ने लिखा है कि वो बहुत पतला महीन सा फोन था जिसमें 5 रेडियो फ्लैश मेमोरी थी और कोई बटन नहीं था। एप्पल आईफोन के लॉन्च के बाद ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर की हेडलाइन का जिक्र मैं करूंगा
उसने लिखा कि नैनो टेक्नोलॉजी बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ आईफोन। आईफोन के विकास के पीछे नैनो टेक्नोलॉजी है। उस फोन के लॉन्च ने पूरी दुनिया को बदल दिया, क्योंकि उसके साथ ही टेक्नोलॉजी कंपनीज में नए फ्रंटियर के लिए बहुत तेज कंपटीशन प्रारंभ हुआ और ऐप इंडस्ट्री की नींव तभी रखी गई। उसी वर्ष भारत में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन भी लॉन्च हुआ था और उसी के आसपास अमेरिका में भी नैनो साइंस रिसर्च के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। मैं समझता हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी के एक्सपोनेंशियल कर्व ग्रोथ की कल्पना जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक नोरियो तानिगुची उन्होंने भी नहीं की होगी जब उन्होंने 1974 में पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल दुनिया में पहली बार किया था। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 18 वर्षों में नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन ने अपेक्षा से कहीं बढ़ करके पूरी मानवता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज ये कहना मुनासिब होगा कि आज नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ने अनेक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में उल्लेखनीय सुधार लाने और क्रांतिकारी बदलाव लाने में बड़ी भारी सफलता अर्जित की है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इन बातों का विस्तार से जिक्र किया है। मेडिसिन, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी, इस पूरे परिदृश्य को नैनो टेक्नोलॉजी ने बदल करके रख दिया है। नैनो रिसर्च को कमर्शियल एप्लीकेशन में ट्रांसफॉर्म करने के मामले में आज हमारा देश चाइना के बाद पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है। नैनो के इनपुट और नैनो फर्टिलाइजर के मामले में भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये बात सभागार में बैठे लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगा। भारत में सबसे पहले नैनो यूरिया इफ्को ने बनाई और पूरे देश में सबसे पहले नैनो यूरिया का प्रयोग जम्मू कश्मीर में हुआ। ये तथ्य शायद यहां की सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम पूरे विश्व के किसानों का मार्गदर्शन आज कर रहे हैं। मित्रों, ये भी सच है कि नैनो फर्टिलाइजर चाहे वो नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी काफी हद तक कम किया है और फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में बड़ा भारी योगदान दिया है। इसका सीधा असर आम आदमी के सेहत और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। देश में भारत बायोटेक ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के डेवलपमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी को ही इंटीग्रेट किया था, लेकिन यह एडवांसमेंट यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि अगर बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ने इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में क्रांति को हवा दी तो टारगेटेड थेरेपीज में, चाहे वो कैंसर हो या बाकी रोग, उनका शीघ्र पता लगाने, बायोसेंसर और स्पेसिफिक सेल्स यानी विशेष कोशिकाओं को ड्रग डिलीवरी द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी ने हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख दिया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि IIT मुंबई ने नैनो कैरियर्स और नैनो कैप्सूल्स अभी हाल ही में डेवलप किए, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, जो टारगेटेड डिलीवरी सुनिश्चित करके जिसके साइड इफेक्ट्स को मोटे तौर पर काफी हद तक समाप्त करने में सफलता पाई। हेल्थ सेक्टर में ही नैनो टेक्नोलॉजी ने नैनो आई ड्रॉप को जन्म दिया है। आज देश भर में बहुत सारे लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक तो इम्यूनोज प्रेजेंट, ये है जो क्रॉनिक ड्राई आई डिजीजेस में टीयर्स माने आंसू का उत्पादन बढ़ाता है और जो आंखों में सूजन होती है इसके कारण कम हो जाती है। आज देश में ढेर सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। पीने के पानी से माइक्रोप्लास्टिक और भारी धातुओं और आर्सेनिक तथा फ्लोराइड जैसे प्रदूषकों को हटाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से नैनो फिल्टर, जिसका जिक्र प्रोफेसर अशोक कुमार साहब कर रहे थे, विकसित किए गए। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग
सोलर सेल्स की दक्षता बढ़ाने और अधिक कुशल बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को विकसित करने के लिए भी आज देश में होने लगा है। इसके उपयोग को और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस पर अभी ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी के इनोवेशन, ईज ऑफ लिविंग बढ़ावा दे रहे हैं। अभी ये कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी के सभी साइंटिस्ट के लिए एक आइडिया एक्सचेंज तथा कोलैबोरेशन का एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं भी थोड़ी लालच में हूं और मेरे दिमाग में जो चल रहा था, कई लोगों ने कहा कि मैं आया हूं, मैं स्वार्थ से और उसको मैं आगे जिक्र करना चाहता हूं। मेरा भी स्वार्थ है और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का वो स्वार्थ है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां पिछले दिनों जम्मू कश्मीर ने या हिमालयन रेंज ने अनुभव की, मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि किस प्रकार का नैनो मटेरियल डेवलप करने और इस सेमिनार में, इस 5 दिन की कॉन्फ्रेंस में आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पिछले 1 महीने से जम्मू कश्मीर में तथा देश के अनेक राज्यों में जिस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज आई, आज यहाँ उपस्थित सभी एक्सपर्ट्स से मेरा आग्रह होगा कि क्या इन 5 दिनों में एक एक्सपर्ट ग्रुप हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा अधिक संवेदनशील सटीक सेंसर बनाए, फ्लैश फ्लड की एडवांस अर्ली वार्निंग जम्मू कश्मीर और हिमालयन रीजन के बाकी स्टेट्स को दे सकते हैं। क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी इसमें लीड ले सकती है? क्या जम्मू कश्मीर के और भी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करके देश के बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके जल्दी से जल्दी इस पर हम काम शुरू कर सकते हैं? क्या हम हिमालयन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से ऐसे सॉइल सेंसर डेवलप कर सकते हैं जो सॉइल सैचुरेशन, यानी जब मिट्टी की संतृप्ति हो जाए और परिवर्तन का अनुमान हम लगाएं तो एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा दें कि लैंडस्लाइड के पहले ही हमें पता चल जाए कि इस इलाके में लैंडस्लाइड होने वाला है। इसको अगर आप कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इस पूरे 5 दिनों के कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी उपलब्धि। मुझे लगता है कि ये 2 प्रोजेक्ट आने वाले भविष्य भारतवर्ष और विशेष रूप से हिमालयन रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो डिफेंस सेक्टर है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स आज की भारत की जरूरतों के मुताबिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप सब वाकिफ हैं कि अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने अनुभव किया है, आप जानते हैं कि लंबे समय तक देश का डिफेंस सेक्टर प्राइवेट लेयर्स के लिए खुला नहीं था, R&D के लिए उसमें जगह नहीं थी। धीरे धीरे आज भारत आर्म्स एम्यूनिशंस का एक बड़ा इंपोर्टर बनता जा रहा है। 2014 के बाद डिफेंस इक्विपमेंट में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, ये फैसला भारत की सरकार ने किया और पहली बार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सरकार के पूरी तरह कंट्रोल से बाहर निकालकर प्राइवेट प्लेयर्स को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी प्रोत्साहित करने का काम किया। 1 दशक में क्या बदलाव हुआ उसका जमीन पर प्रमाण पूरे देश ने, हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारत लगभग आज दुनिया के 100 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी सामान्य तौर पर एकेडमिया का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण देश का नजरिया बदला है। डिफेंस स्टार्टअप्स, MSMEs, इंडिविजुअल इनोवेटर्स ने एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच संबंध मजबूत बनाने की दिशा में बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। मेरा निवेदन होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट डिफेंस इक्विपमेंट के लाइटर कंपोनेंट के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में IITs को पार्टनर बनाया गया है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को पार्टनर बनाया गया है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। IDEX नाम का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, मैं समझता हूं कि भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निश्चित रूप से इस इनिशिएटिव के कारण आने वाले भविष्य में विकसित किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट इससे जुड़कर डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूरा योगदान दें। ये मेरा तीसरा आग्रह है। स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए आज रीजनरेटिव मेडिसिन और काफी शोध, काफी रिसर्च हो रहा है ताकि डायग्नोसिस एंड ट्रीट, निदान और उपचार दोनों सामान्य आदमी के लिए भी आसान हो सके। इस दिशा में भी आप सब महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और मुझे लगता है और योगदान दे सकते हैं। एडवांस इम्प्लांट पर दुनिया के अनेक देश आज काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है। उसे भारत में कैसे हम गति प्रदान कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मानवता के कल्याण के लिए खासतौर से देश में सामान्य आदमी, गरीब आदमी के भविष्य में जो जरूरतें हैं उनको हम कैसे पूरा करने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, इन्वायरमेंट हो, फूड एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स, नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल, नैनो स्केल एडिटिव्स, ये जो नए इनोवेशंस हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी का लाभ आम आदमी तक हम पहुंचा सकेंगे। काफी हद तक हमें सफलता मिली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत के आम आदमी तक के लाभ अधिक से अधिक पहुंच सके। फ्रेंड्स, we must focus on developing and using nanotechnology for the benefit of humanity. And I would like to reiterate that we simply can't ignore the daunting challenges of climate change that confront us. Our inventions and initiatives show how quickly we are leading various areas of nanotechnology. We should also devise a plan to incentivize talents in nanotechnology in our academic institutions. I would like this international conference to provide certain suggestions on this as well. I compliment University of Kashmir for organizing this significant event. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.